Hello students, welcome back. So this is going to be the third and the concluding video for the chapter Biotechnology and its applications. तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? We are going to see transgenic animals, the reasons for developing transgenic animals and ethical issues associated with biotechnology. So let's begin. First, what are transgenic animals? Any animal or any organism, for that matter we can say, whose DNA has been deliberately modified. How? By the introduction of a foreign gene or a foreign DNA which is able to express itself in that organism. That is transgenic animal, right? Okay, students. So transgenic animals का जो definition अभी मैंने बोला था, I have written it for your convenience. So what are they? The animals whose DNA has been deliberately altered by introducing a foreign gene that is able to express itself. बहुत ज़रूरी है कि ये जीन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है that is able to express itself within that animal, तभी तो हमें वो फ़ायदा मिलेगा, वो प्रोडक्ट या प्रोटीन या वो प्रोसेस जो भी है वो मिलेगा. अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का पॉइंट क्या है, राइट? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बहुत तरह के डेवलप किए गए हैं. अब सबसे पहले तो दिमाग में क्या आता है? माइस है, रैट है, काऊ है, फिश है, शीप है एंड आई गेस और क्या बचा है? गोट या एंड पिग्स. ओके, बट 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस. Why? Because mice का use in the lab is very high. It's a small organism and in the lab it is easy to manage. उनमें study करना, देखना, their population increases very fast, easy to handle, right? तो transgenic animals को develop करने का purpose, reason क्या है? Here I have listed down the purposes. So the first purpose is to study the normal physiology and development. Of course, study of the normal physiology and development. एक individual में वो processes कैसे होता है. Now that individual can be a human being or it can be any other animal. Okay? So what do we see under this? We see how genes are regulated, how genes are controlling or how they are contributing towards the functioning of physiological and developmental purposes. क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या है? यहां का एग्जाम्पल दे देती हूं. IGF-1. Insulin like growth factor is actually a hormone. It's a chemical messenger that is present in humans. And what does it do? It controls the action of some of the cells of human. Okay? तो उसका study करना was one of the example of this. Second purpose, and it's a very important one, is to study diseases. Of course, genes का क्या role है in the development of a disease? और ये स्टडी करने के लिए वी हैव डेवलप्ड मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल्स फॉर स्टडिंग डिजीजेस. उनमें हम उस इफेक्ट को देखते हैं. और टुडे वी हैव ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल्स फॉर डिजीजेस लाइक एल्जाइमर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर. ओके. थर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. अब हमारे लिए बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं वी नीड इन लार्ज क्वांटिटी एंड दे आर बेनिफिशियल टू अस. तो इसके लिए क्या किया जाता है? द जीन ऑफ द इंटरेस्ट, जिससे कि वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनने वाला है, उसको उस एनिमल में डाल देते हैं. दैट जीन एक्सप्रेसेस, इट प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट एंड देन वी गेट इट बैक. टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस आर
So the first example is the extraction of the protein alpha 1 antitrypsin. What is its use? It is used for the treatment of emphysema. एम्फाइसीमा क्या डिजीज़ है, याद है? और किससे होता है? जिन्हें याद है वो कमेंट बॉक्स पे लिख के बोले. And this is a very interesting example. In 1997, the first transgenic cow named Rosie was developed. अब वो transgenic cow कैसे हुआ? उसमें the human gene that is responsible for the coding of human alpha lactalbumin, which is a milk protein found in human milk. उस जीन को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था. As a result, that milk that was produced by Rosie cow had very high amount, 2.4 grams per liter of human alpha lactalbumin in its milk. तो क्या हुआ? This milk was then found to be nutritionally more rich for infants when compared to regular cow milk. Clear है? ये एक बहुत ही important contribution है. Then comes vaccine safety. अब वैक्सीन को ह्यूमन में ट्राई करने से पहले दे आर ट्राइड ऑन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. द एनिमल कैन बी अ माइस, इट कैन बी अ मंकी. वन ऑफ सच एग्जाम्पल इज द trial of polio vaccine on mice. But as time progresses, attempts are being made कि अगर mice ज़्यादा reliable हो रहा है for testing vaccine, then the purpose of then the need for testing vaccines in monkey will be eliminated. तब फिर धीरे धीरे सब mice पे ही try होगा. Clear है? Chemical safety testing या testing of toxicity of drug. ये भी ह्यूमन में ट्राई करने से पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ट्राई किया जाता है. और इसको ट्राई करने के लिए क्या किया जाता है? द जीन दैट मेक्स दैट ट्रांसजेनिक एनिमल वेरी सेंसिटिव टू द टॉक्सिक्स या द केमिकल्स दैट इज इंट्रोड्यूस्ड. और फिर जब सेंसिटिविटी बहुत होता है, ऑल द इफेक्ट्स आर स्टडीड एंड देन अ कंपैरिजन इज मेड, सेंसिटिव वर्सेस नॉन सेंसिटिव या रेगुलर कंडीशंस, एंड दैट इज हाउ द स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स इज कैरिड इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स. क्लियर है? इसका और एक एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूसेस द स्टडी टाइम एंड द नीड फॉर टेस्टिंग इट डायरेक्टली ऑन ह्यूमन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. पहले इन पे टेस्ट किया जाता है, फिर ट्रायल्स ह्यूमन्स पे स्टार्ट किया जाता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन. तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो पढ़ा, ऐसा नहीं लग रहा कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, वेरी बेनिफिशियल, सब कुछ ही बहुत अच्छा हो रहा है एंड देयर आर नो साइड और नेगेटिव इफेक्ट्स. पर ऐसा होता नहीं है. किसी भी चीज़ का पॉजिटिव साइड हो तो उसका थोड़ा ही सही लेकिन एक नेगेटिव साइड भी होता है. क्लियर? और यहीं पे एथिकल इश्यूज आते हैं. कैसे? नाउ व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? इट इज व्हाट डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ द जीनोम और डीएनए ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. अब आप डेलिबरेटली जब किसी के डीएनए को मैनिपुलेट कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. और सॉफ्टवेयर को चेंज करके तो आप कुछ भी कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिट. क्लियर है? सो कैन यू इमेजिन कि अगर हम इस बात को सीरियसली ना ले, इफ वी डोंट सेट द रूल्स और ले द बाउंड्री, एनी साइंटिस्ट में स्टार्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट and the interference with the nature will be, we will not even know कि how far these interference will go. तो ethical issues इसीलिए होते हैं. These ethical issues are very very important. The ethical issues related with biotechnological applications. So let me write down a few of the very important concerns. So इसके ethical issues इतने ही serious है कि I have written it with red. तो ethical issues क्या क्या हो सकते हैं? First तो the issues that are related with the GMO या genetically modified organisms. क्या हो सकता है? द एथिकल कंसर्न ऑफ प्लेइंग विथ नेचर, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि देयर हैज़ टू बी अ बाउंड्री
कि हम कहाँ तक और किस हद तक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीन मैनिपुलेट करेंगे, राइट? फिर कंसर्न अबाउट देयर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट. नाउ देयर आर मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स वी हैव डेवलप्ड फॉर आवर स्टडी पर्पसेस. अगर हम उन्हें नेचर पे छोड़ दें, what could be the effect we do not know. Say for example, जैसे हमने रोजी काउ डेवलप किया, now it is giving the milk which is very rich in human alpha lactalbumin. Clear है? Now that milk can be beneficial for human. But do we know कि इस काउ को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, whether that milk is going to be equally beneficial for the calf or not? या उसमें कोई इंटॉलरेंस दिखाएगा या वो प्रोटीन उसको हजम नहीं होगा. डू वी नो दैट? हैज़ दैट स्टडी बीन डन? आई डोंट नो. पर वही बात है कि हमने अपने कन्वीनियंस के लिए जिसे डेवलप किया है, विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग एंड नोइंग इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसे नेचर में छोड़ देना इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रिस्की थिंग, because it could harm the biodiversity. And what are the long-term effects of leaving any genetically modified organism in the nature, in the ecosystem? We do not know. That's uncertain, right? So these are the points for GMO. Second is biopiracy. This is very, very important. So dear students, piracy क्या है? I think you all know. पायरेसी मतलब क्या? किसी और के सामान को अपना बोल के आगे चला देना. एज सिंपल एज दैट. तो बायोपायरेसी क्या है? अब बायोपायरेसी क्या है ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन दिस ग्लोब द पुअरर एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, से फॉर एग्जाम्पल द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका या एशिया, एंड हियर आवर country of concern is India, are very rich in biodiversity and the traditional and age-old knowledge that the local people have of using this biodiversity and these bioresources, right? The West, the rich and the powerful country, they are rich, they have the money power. What they don't have? This knowledge and this bioresources. But कहते हैं ना कि पैसे की ताकत बहुत है. अब बहुत बार ऐसा होता है कि वो आते हैं यहाँ से ये बायो रिसोर्सेज को ले जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से और पेटेंट करके मार्केट पे छोड़ देते हैं. एंड द पुअर पीपल ऑफ दीज कंट्रीज, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, दे आर नॉट इवन गिवन कंपनसेशन, एंड देयर आर नो परमिशंस टेकन, नो कंसर्न फॉर द अथॉरिटीज. दैट इज व्हाट बायोपायरेसी इज. So biopiracy is what? Biopiracy is the use of the indigenously available bioresources by an organization or a multinational company or a multinational organization without getting a proper authority from the people, those who have been using this for centuries, without giving them proper compensation. Clear है? अब हम अगर किसी से कोई आइडिया चुरा रहे हैं, इट्स ऑलवेज गुड कि हम उसको एक्नॉलेज करें, कुछ उसको उसका वैल्यू दे, फिर हम यूज करें, तब ये बात इतनी खराब नहीं होती, राइट? और बायोपायरेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन द ईयर 1997 बासमती. उससे पहले क्या? ये देख लो कि इन इंडिया 2 lakh varieties of rice unknown. Clear? उसमें से 27 varieties of basmati are known. In 1997 एक अमेरिकन कंपनी ने क्या किया था? They took the basmati genome, बासमती ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उसको किसी ड्वार्फ राइस से क्रॉस करवाया और उसको कुछ अलग ही नाम दिया, और उसको टेक्सामती उसका नाम है, और उसको कहा कि दिस इज़ अ नोवेल इन्वेंशन. दे गॉट द पेटेंट फॉर दैट एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इट ऑल अक्रॉस. क्लियर है? तो इससे धोखा तो हमारे साथ हुआ.
अब कोई अगर किसी चीज़ का पेटेंट ले लेता है, सो दैट पुट्स द अदर पीपल डीलिंग इन दैट प्रोडक्ट इन ट्रबल, दे पुट इट इन देम इन रेस्ट्रिक्शन, फिर वो खुल के उस पर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो ये था पहला एग्जाम्पल। उसके बाद नीम एंड टर्मरिक। नाउ इट्स नीडलेस टू से कि हम नीम और टर्मरिक, तो इट्स लाइक हमें बचपन से ही मालूम है कि दीज आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। इन दोनों को भी पेटेंट किया गया था। बाय हु? बाय यूएस। बट इनके खिलाफ इंडिया ने आवाज उठाई थी। दे हैड contradicted, they had fought cases and they got the patent revoked. Okay, so now do you know how serious biopiracy is? तो इसीलिए to take the safety measures against biopiracy becomes very very important. तो वही हम अभी देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है to take steps against biopiracy. So here is a list of the steps taken by Indian government to fight biopiracy, or you can say biopiracy and the ethical issues related with biotechnological applications. तो पहले let us look at the acts and then we will see the committee, the acts that has been passed by Government of India. दो एक्ट है, एक है इंडियन पेटेंट्स एक्ट, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो बासमती को जब पेटेंट कर लिया था उसके बाद हमारी नींद खुली थी कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू गेट योर थिंग्स पेटेंटेड। ओके, कोई और पेटेंट ले ले उससे पहले आप अपनी चीज़ को पेटेंट करवा लीजिए सो दैट यू हैव द राइट्स। ओके, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड इंडियन गवर्नमेंट मेड अ कमिटी GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। What is the job of this committee? It is responsible for checking the safety of genetically modified research या genetic modifications वाले research, approve large scale use of GM crops, field trials, etc. Clear है? So that was all about the ethical issues and the steps taken by Government of India. With this we come to the end of this chapter. This video was a small one and an easy one, I guess, right? तो कैसा लगा ये वीडियो? Don't forget to mention it in the comment section and please don't forget to like this video. Subscribe to my channel and I'm going to see you very soon with another video on another chapter. Till then, take care. Bye.